Hello, welcome students. Myself Rohit Kumar Rohit. I'm taking your biology classes. Okay, so I will take the biology for NEET and 11th 12th class. In this today's session only, we will understand the basics of the biology. What is biology? What is science? And all these things. Okay, so let's begin. My first question is what is science? If we talk about science, we already talk about okay, we are science biology student, we are science, we are reading science. What is science? We can say study of nature in well uniform manner. Study of nature in well uniform manner, which can prove by some experiments and hypotheses and theories called as science. इस स्टडी की नेचर से हमें जो नॉलेज मिल रही है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त वॉट एवर, हम कह सकते हैं नेचर को हमने स्टडी किया. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन, हमने बोला एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज. देयर इज अ साइंटिस्ट गिव थ्योरी इफ वी पुट एनी ऑब्जेक्ट इन एयर, हमने एक ऑब्जेक्ट को एयर में छोड़ा, इट विल फेल डाउन या इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड. दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. हम बात कर रहे हैं कि भाई हमने एक ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ा, एयर में छोड़ा, इट विल फेल डाउन, गिर गया नीचे. ग्राउंड की ग्रेविटी ने इसको अट्रैक्ट किया. अब ऐसा तो है नहीं कि ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ सिर्फ हमारे रूम में या एक पर्टिकुलर एरिया में वर्क कर रहा है. ये नेचर में एवरीवेयर प्रेजेंट है. कहीं पर इसकी वैल्यू ज्यादा या कम, वो वैल्यू कम ज्यादा डिपेंडिंग ऑन एल्टीट्यूड एंड अदर फैक्टर्स वर्क कर रही है. हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम एक बेसिक बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर हम कह सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट हवा में छेड़ा, वो छोड़ा, वो जमीन पे गिर गया. आप चाहे इसको रूम में कर लो, स्कूल में कर लो, कोई फंक्शन में कर लो, कहीं पहाड़ों पे जाओ वहां कर लो, समुद्र के आसपास कर लो, हर जगह पर ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज फेल डाउन एक्सेप्शन स्पेस. सो ने बोला नेचर के अंदर प्रेजेंट फिनोमेना के अंदर स्टडी करें, स्टडी ऑफ नेचर इन वेल यूनिफॉर्म मैनर which can prove by some experiment and theories, that is called science. अब हमने साइंस को हमारे इजीनेस के लिए अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा था. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री and biology. Here we talk about physics, chemistry and biology, the branch of science in which we study about physical parameters. Physical parameter of nature. That is called physics. यानी जो भी फिजिकल पैरामीटर्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल पैरामीटर्स. इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल फिजिक्स, हमने बोला नेचर में प्रेजेंट फिजिकल पैरामीटर्स की बात की हमने. सो व्हाट इज फिजिकल पैरामीटर्स. सी, सबको लग रहा है सर ये क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आज बेसिक्स की बात कर रहे हैं. हम इवन इन दिस सेशन we will discuss only and only what is science, the branches of science, and even what we will learn from biology. From 11th class biology हम कौन कौन से चैप्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं, किस स्टेप में पढ़ने वाले और क्यों. We will discuss that thing only. From next lecture onwards, we will start properly what is science, what is biology and all things. But यहाँ पर हम पढ़ने का तरीका और क्या, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं. So it's a basic thing, you know. So what is physical parameters of nature? If someone tell कि we are talking about physical parameter, तो हम कह सकते हैं कि length of object, height, weight. हमने सारे के सारे फिजिकल पैरामीटर्स की बात की. We talk about physical parameters of nature, that is called physics. The father of physics is known as Newton. The father of physics is Sir Isaac Newton. Spelling mistake हुई.
and second one is Albert Einstein. This Albert Einstein. The two scientists are known as the father of physics. First one is Sir Isaac Newton and second one is Albert Einstein. The both are known as father of physics. Now we talk about chemistry. So what is chemistry? What is chemistry? When we talk about chemical parameter या chemical property of nature, if we talk about chemical parameters and chemical properties of nature, we will talk about chemistry. भाई केमिकल पैरामीटर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में। आ रही बात समझ में? सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस कंडीशन में है, मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, बहुत सारे, एसिड है, बेस है, ठीक है, पीएच उसका क्या है, ऑल थिंग्स आर कम अंडर केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फाइंड एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, आपने कहीं पर खुदाई की, आपको वहां पर कोई एलिमेंट मिला, हाउ कैन यू से दैट इज अ गोल्ड? आपने कुछ टेस्ट किया होगा, भाई मेटल है, नॉन मेटल है, पहले वो टेस्ट किया होगा, भाई जो चीजें मेटल है वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है, हीट कंडक्शन करती है, वॉट एवर इट इज। देन उसके बाद बोला हाँ दीज ऑल आर द मेटल्स और उसमें का गोल्ड है ये। तो आपने केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की है नेचर की। हर जगह पर केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते ही है ना कि भाई यहाँ लाइम ज्यादा है या क्या है, वॉट एवर इट इज, दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री, मैं यहाँ पर इसको येलो कलर से डिनोट कर रहा हूं, आप लोग इस नाम को लिख लेना, एंटोनी, क्योंकि बहुत जगह क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एंटोनी लेवोजियर। Antony Lavoisier is the father of chemistry. ओके तो ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। नाउ वी टॉक अबाउट बायोलॉजी, आवर मेन सब्जेक्ट। व्हाट इज बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस, वी कैन से, because we are talking about biology, that's why I'm writing the definition of biology. Branch of science in which we study about living and their properties. That is called biology. The branch of science in which we study about living and their property, that is called biology. Got my point? I hope you all aware with the physics, chemistry and biology. हाँ, biology के जो father थे, again I am using the another color, that is biology for blue color, Aristotle, who first explained about biology. We talk about science. What is science? We tell the study of nature in well uniform manner which can prove by some experiments in theory, that is called science. After that, we divide the science in three major categories, that is called physics, chemistry and biology. Physics is a branch of science in which we study about physical properties or physical parameters of nature, that is called physics.
like a physical parameter, physical property like length of object, height of object, mass of object. That's all and all. Answer. The father of science, physics is Newton and Einstein. Then we talk about chemistry. That the we talk about chemical properties of nature like object, solid है, liquid है, gas है, metal है, non-metal है. These all things chemical properties. The father of chemistry is Antonio Lavoisier. Now we talk about biology, the branch of science in which we study about living and their property, that is called your biology. The father of biology is Aristotle. So from here we start our introduction of biology. Okay, biology itself a term. If we talk about biology, ये अपना आप एक term है which will form by two words, bios and logos. These two terms form the complete biology. Bios means living and life, and logos means to study, which means study of livings. That is called biology. We can say study of livings called as biology. This term is given by a two very famous renowned scientists. One is Lamarck and Treviranus. Two scientists give this term biology. And the father of biology is Aristotle. Aristotle is the father of biology. But the term biology is given by these two scientists. Okay, got my point. I hope you got understand from here only. Okay, now we talk about the parts of biology. We also divide the biology in different branches. Okay, if we talk about biology, biology have majorly two branches. हम यहाँ पर पढ़ते हैं. See, you are giving the examination of NEET, National Eligibility Cum Entrance Test, in which you got MCQ pattern examination. ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड का भी चल रहा है. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45 question, 45 question, 90 question, in which 45 from botany and 45 from zoology. This is the main breakup of the all exam questions. ठीक है, टोटल एग्जाम मार्क्स होते हैं 720, in which 360 marks of biology. तो उसके लिए 11th में को क्या पढ़ना होता है, हमने बायोलॉजी को यहाँ पर दो ब्रांचेस में डिवाइड कर रखा है. ठीक है, एक छोटी सी नॉलेज आपको दे दी, आगे वापस हम यहाँ पर आते हैं. ठीक है, बाद में करेंगे. So first branch is botany and second branch is zoology. So botany की बात करें, the branch of biology in which we study about plants and their
properties, that is called botany. अब botany के फादर कौन थे? Father of botany is Theophrastus. Now we talk about zoology. The branch of biology in which we study about animals and properties. That is called zoology. The father of zoology is Aristotle. Okay, this is the introduction of biology, and here only we talk about the 11th biology. So I made some slides कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और हम कैसे पढ़ना है. It is a short video, okay? ज़रा डिटेल वीडियो नहीं रहेगा. In this we will study only and only साइंस क्या हुआ, what is biology, all details. Fine. इसी को आगे अपन फिर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे. देन हम चैप्टर वाइज चलना शुरू होंगे. आज हम लोगों ने साइंस क्या होता है, बायोलॉजी क्या है, इन सारी टर्म्स और इन सब के बारे में बात की. I hope you got my point detailedly. Okay, यहाँ पर हम कुछ बातें और कर लेते हैं आज. पहले what is life? If we talk about life, लाइफ क्या होती है, हमें कैसे पता कोई एनिमल लिविंग है या नॉन लिविंग है, कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है. सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इसके बारे में हम समझते हैं. तो लाइफ क्या होता है? द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक chemical reactions which lead to show growth, response, metabolism, homeostasis, reproduction, movement, and other biological activities. Called as life. And those objects which exhibit these all biological activities called as living. यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ओनली मूवमेंट है कि भी आप नहीं कह सकते ना कि वो लिविंग है नॉन लिविंग है.
There are group of some activities. On behalf of that, we can share the information that that particular object is living organism and non-living organism, which contain growth, response, metabolism, homeostasis, reproduction, movement and other biological activities. यहाँ पर एक word आ गया, biological activities. तो ऐसी एक्टिविटी या फिर दोज एक्टिविटीज शोन बाय लिविंग, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. अब हमने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. बायोलॉजिकल एक्टिविटी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. पहला है डिफाइनिंग. आप इसको एक्टिविटी बोलो या फिर बोलो प्रॉपर्टीज, एक ही बात है. एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और एक होती है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है? स्ट्रिक्टली shown by all living. भाई जितने भी लिविंग है स्ट्रिक्टली वो एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. नॉन डिफाइनिंग may not shown by all living or may be present in non-living object also. यानी ऐसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हो सकता है कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी दिखा रहा है और सारे लिविंग उस एक्टिविटी को नहीं दिखा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कम अंडर द नॉन डिफाइनिंग बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. गॉट माई पॉइंट? अब ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो सारे लिविंग दिखाते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है? आइए पहले पर उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, अब देखिए पहले हम बात कर रहे हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की. ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है? एक्सक्लूसिवली एंड यूनिवर्सलिटी. भाई ऐसी प्रॉपर्टीज जो क्या हो, एक्सक्लूसिवली हो. एक्सक्लूसिविटी shown by these properties. कैसे? They are found in only in living things. नॉन लिविंग में नहीं होती है. और दूसरा, दे ऑल्सो शो द यूनिवर्सलिटी. यूनिवर्सलिटी मतलब यूनिवर्सलिटी which means they apply to all living organism without exception.
कोई एक्सेप्शन नहीं, ये देखने को मिलेगी ही मिलेगी। प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो डिफाइनिंग फीचर है, उसका सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है आपका मेटाबॉलिज्म। तीसरा है आपका कॉन्शियसनेस। चौथा हम कह सकते हैं होम्योस्टेसिस। These all four properties are defining features। ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि ऑल लिविंग organisms are made up of one and more cells। ठीक है। मेटाबॉलिज्म कहता है ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटी मेजरली एनाबॉलिक एक्टिविटी और कैटाबॉलिक एक्टिविटी। कॉन्शियसनेस और होम्योस्टेसिस। ठीक है। हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? It means all livings are awareness from internal and external stimuli. The awareness of internal and external stimulation stimuli। ठीक है। इसके अंदर मेमोरीज, थॉट, सेंसेशन, सराउंडिंग्स, ऑल सारी नॉलेज के बारे में वो डिटेल करता रहेगा। होम्योस्टेसिस मीनिंग कम कर सकता है प्रोसेस by which living organism maintain stability
जैसे मेंटेन अ स्टेबल, और लिख सकते हैं मेंटेन अ स्टेबल कांस्टेंट internal environment to ensure the survival and proper functioning. तो हमने बात की 4 लिविंग प्रोसेस के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड होम्योस्टेसिस की। अब होम्योस्टेसिस में एग्जांपल क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन, वाटर एलिवेशन एंड ऑल दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस। क्या आपका बाहर एनवायरनमेंट कितना भी चल रहा हो, बट इंटरनल एनवायरनमेंट सिमिलर रहेगा। ठीक है, ये थी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अब हम बात करेंगे नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के अंदर देखो, टॉपिक इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अब नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी या तो may shown by non-living also, या फिर not shown by all living organism। तो इनको बोलता है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। इसका पहला एग्जांपल है आपका ग्रोथ, एंड सेकंड एग्जांपल है रिप्रोडक्शन। इसके अलावा तीसरा एग्जांपल हम और एक यहां लिख दे रहे हैं। थर्ड एग्जांपल इज मूवमेंट। हम यहां 3 चीजों की बात करेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। ग्रोथ क्या बोलता है? इररिवर्सिबल increase in mass is called as growth। जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में इररिवर्सिबल इंक्रीजमेंट हुआ, इसको अपन ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ क्या होती है? नॉन लिविंग भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, एक आयरन बॉल है, मैंने इसको छत पे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, तो इसके ऊपर क्या होगा? रस्टिंग लगेगी, रस्टिंग की लेयर वगैरह जम गई, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा ना, तो नॉन लिविंग में भी तो ग्रोथ दिखाई। या फिर अगर एग्जाम्पल हो, सबसे सिंपल एग्जाम्पल देखो, वॉल्केनो तो सब जानता है ना, ये वॉल्केनो है, इसके अंदर लावा मैग्मा भरा हुआ है। अब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, पहले सरफेस एरिया क्या था? यहां से लेके यहां तक था। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, इसके अंदर से बहुत ज्यादा लावा या मैग्मा बाहर निकला, और वो क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया सरफेस एरिया पर। तो ये भी तो ग्रोथ हुई ना। नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ कर रही है, लाइक ह्यूमंस के अंदर हेयर, नेल्स, ये भी तो इसी का एग्जाम्पल होंगे। तो ग्रोथ क्या हो गया? इसलिए हमने इसको नॉन डिफाइंड रखा, नॉन लिविंग चीज अभी इसको दिखा रही। मूवमेंट का भी सिमिलर है।
change in posture or position with respect to time. अब प्लांट्स मूवमेंट दिखाते हैं, पर क्या वो एक जगह दूसरे को मूव कर सकते हैं? क्या नहीं। लेकिन ह्यूमन दिखाता है, ठीक है, लिविंग दिखा रहे हैं। नॉन लिविंग, रेलगाड़ी, कार, बाइक, बस, ये सभी तो मूव करती है। दैट्स वाई हमने मूवमेंट को क्या माना? एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब सबके दिमाग में तो ये चल रहा है सर रिप्रोडक्शन क्यों? तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि भाई इट इज अ प्रोसेस बाय ओल्ड ऑर्गेनिज्म फॉर्म न्यू ऑफस्प्रिंग्स टू मेंटेन द स्पीशीज ऑन अर्थ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके एक्सेप्शंस एक्चुअल में सारे लिविंग दिखाते हैं। पहला है म्यूल, क्रॉस ब्रीड ऑफ मेल फीमेल हॉर्स यानी मेरी एंड मेल डंकी, म्यूल, उसके अंदर नहीं बनता। इसके अलावा वर्कर बी, हनी बीज के अंदर जो वर्कर बीज होती है वो स्टेराइल होती है, सिसाइल होती है, वो फर्टाइल नहीं होती है। स्टेराइल कपल किसी मेल, किसी ह्यूमंस के अंदर मेल में या फीमेल में कोई मेडिकल इश्यूज, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते तो वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो ये सारा हुआ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बायोलॉजी का सिंपल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं हम कौन सी यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे, किस फ्लो में स्टडी करेंगे और कैसे कैसे क्लासेस हमारी चलेगी। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले देखो हमारे पास है यूनिट 1, हाईलाइटर यूज कर लेते हैं इसके लिए हम। यूनिट 1, डाइवर्सिटी ऑन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी कि हम लिविंग्स और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड। ओके, व्हाट इज लाइफ, लिविंग क्या होते हैं, उनके अंदर कौन कौन से एनिमल्स, हमने कैसे कैसे क्या एनिमल्स को ले रखा है, हमको कैसे कैटेगराइज कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हमने उनको कैसे क्लासिफाई किया, उनके रूल्स क्या है, इनके बारे में इस चैप्टर में स्टडी किया जाएगा। सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जितने भी लिविंग है उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हमने कैटेगराइज किया है, ठीक है, क्लासिफाई किया है, उसके बारे में हम स्टडीज करेंगे। थर्ड है आपका प्लांट किंगडम। हम कंप्लीटली प्लांट्स के बारे में, उनकी जो 5 कैटेगरीज है, उनके अंदर डिटेल कैरेक्टर्स, उनके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे, स्टडी करेंगे। देन चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, हमने फाइलम्स और आगे ग्रुप्स को डिवाइड कर रखा है, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, किस बिहाफ पे किया है, सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी एंड एग्जांपल्स एंड ऑल। ये सारी चीजें आपकी यूनिट 1 के अंदर डिस्कस होगी। सेकेंड यूनिट जो है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बेसिकली हम यहां पर 2 बायोलॉजिकल टर्म्स लिख रहा हूं मैं, एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी। एनाटमी मीन्स हम कह सकते हैं कि इंटरनल फीचर्स या इंटरनल स्ट्रक्चर्स। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। भाई जैसे प्लांट की बात कर ली, उसमें लीव्स होती है, रूट होती है, स्टेम्स होती है, कौन सी रूट्स होती है, कौन सी स्टेम होती है, ये सारा मॉर्फोलॉजी में आ गया। एनाटमी अंदर टिश्यू कौन कौन सा है, लिविंग है, डेड है, कौन कौन से ग्रुप में है, इन सब के बारे में हमें बात की जाएगी। ठीक है, और इसी फॉर्म में ये चैप्टर्स भी हैं। देखा जाए यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो पहला चैप्टर इसके अंदर आएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, आपकी जो 5 कैटेगरीज होगी, उनमें सबसे लास्ट कैटेगरी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी कि एंजियोस्पर्म की। उनमें फ्लावर्स के स्ट्रक्चर, फ्लावर्स के टाइप, फ्लावर में और सबकी पोजीशन, इन सब के बारे में बात की जाएगी। देन है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट, टिश्यू ओरिएंटेशन कैसे होता है, दीज ऑल। चैप्टर नंबर 7, अगर हम नीट की बात करें तो ये चैप्टर थोड़ा सा आधा है एनसीईआरटी में, हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। करंटली इस चैप्टर के अंदर आपका फ्रॉग एंड फ्रॉग की डिटेल्स दे रखी है, लेकिन अगर हम बात करें नीट परस्पेक्टिव की, हम बात कर रहे हैं नीट की बेटा, तो यहां पर हम एनिमल टिश्यूज, आप लोगों ने 9th क्लास में एनिमल टिश्यूज की बात सुनी होगी। 4 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल। इनके बारे में बात करेंगे, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में बात करेंगे। यहां पर इस चैप्टर के अंदर फ्रॉग दे रखा है, उसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा कई बार नीट कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो एक अलग से स्पेसिफिक चैप्टर रहेगा। इवन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज के बारे में डिस्कशन किया गया है। आपकी जो 5 प्लांट्स की फैमिली है, जिसमें से 3 एनसीईआरटी दे रखी है, उसके अलावा 2 एक्स्ट्रा फैमिलीज भी हम पढ़ाते हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देन थर्ड यूनिट एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। हम फर्स्ट चैप्टर के वेरी फर्स्ट चैप्टर के बाद हम पहले थर्ड यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। क्यों? थर्ड यूनिट का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, थर्ड यूनिट क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस, यानी कि पहला है सेल, इसमें चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल क्या होती है, सेल की फंक्शनिंग क्या होती है। आपको अगर नहीं पता होगा तो हम लिविंग्स में यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, इन सबको डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे। देन अगेन चैप्टर इज अ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल्स किस तरह से फंक्शनिंग करती है, उसमें जब सेल मैच्योर होती है, ग्रोथ अभी हमने एक वर्ड पढ़ा, तो सेल डिवाइड कैसे करती है, कैसे वो परफॉर्म करती है, सारे इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, इनके बारे में स्टडी करेंगे। थर्ड चैप्टर इन दिस यूनिट इज, वैसे सेकंड है पर मैं इसको थर्ड प्रायोरिटी पे रखता हूँ, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम बेसिकली हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट सारे कंपोनेंट्स के केमिकल ओरिएंटेशंस के बारे में बात करेंगे। अगेन आई एम सेइंग केमिकल ओरिएंटेशन। केमिकल ओरिएंटेशन मतलब इसके अंदर केमिकली क्या क्या अवेलेबल है हमारे बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं हम फैट्स लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर्स, उनके ओरिएंटेशन, इनके बारे में बात करेंगे, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। स्पेशली हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, बिकॉज विदाउट एंजाइम हम सेल की फंक्शनलिटी को नहीं समझ, और जब तक हमें सेल की फंक्शनलिटी, केमिकल्स के बारे में पता नहीं होगा, हम 11 की लास्ट 2 यूनिट विच आर द प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, उनकी तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। आई एम रिपीटिंग, अगर हमें फंक्शनिंग नहीं पता होगी तो हम प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, यानी फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन और प्लांट्स, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आपकी यूनिट 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके 3 चैप्टर्स दे रखे हैं, इसी को ऑर्डर में पढ़ा जाएगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जो हमने क्लास 10 के अंदर लाइफ प्रोसेस पढ़ा था कि प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाती है, उसकी पूरी एक बायोकेमिकल प्रोसेस। वाटर कैसे आया, उसके बाद प्लांट ने कैसे उसको प्रोसेस किया, किस किस लेवल पे प्रोसेस हुई, सेल्यूलर लेवल पे क्या चेंजेस आए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो हमारे में फूड है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो एटीपी यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, वो प्रोसेस कैसे होती है, किस किस पॉइंट पे क्या चेंजेस होते हैं, दैट वी ऑल डिस्कस इन दिस प्लांट, इन दिस चैप्टर रेस्पिरेशन प्लांट। आफ्टर एनर्जी जनरेशन, कंप्लीट डेवलपमेंट, प्लांट्स क्या करता है, कुछ अपनी ग्रोथ के लिए हॉर्मोन्स को डेवलप करता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 13, दिस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ने ग्रो कैसे किया, उसने आपको मैच्योर कैसे किया, उसने अपने आपको डेवलप कैसे किया, दिस ऑल फंक्शनिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर ओनली। डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स है, उन्हें किस तरह से वर्क किया। इन नेक्स्ट द लास्ट यूनिट, जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, यूनिट 5, दैट इज
ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन की फंक्शनलिटी में यहाँ पर अब कुछ एनसीईआरटी में चेंजेस आए हैं, तो डाइजेशन और भी बहुत सारे चैप्टर्स को हटाया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजमेंट ऑफ द गैसेस। आप जो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हो, CO2 को रिलीज करते हो, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हो, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हो, ब्रीदिंग करते हो, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, बॉडी उसको कैसे प्रोसेस करती है, कंप्लीट डिटेल फंक्शनिंग पढ़ी जाएगी। और जब तक हमें एनिमल टिश्यूज, आई एम रिपीटिंग अगेन दिस पॉइंट, मेक श्योर, जब तक हमें एनिमल टिश्यूज के बारे में नहीं पता होगा, हम इसमें पढ़ ही नहीं पाएंगे। द नेक्स्ट चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आपके बॉडी में जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स, हार्ट, ब्लड और सारी चीजें डिस्कस होती है, उसका सिस्टम किस तरह से फंक्शनिंग करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हमारी बॉडी जब मेटाबॉलिज्म करती है तो बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन करती है, उनको बॉडी से बाहर कैसे एलिमिनेट किया जाए ताकि हमारी बॉडी को हार्म ना करें। दैट्स द मेन थिंग वी डिस्कस इन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। हाँ, ये सारे फिजियोलॉजी के। चैप्टर नंबर 17, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसके अंदर हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, हम कैसे चलते हैं, इवन हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी मसल्स मूवमेंट कर रही हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलीजिंग कैसे मूवमेंट करता है, उसके बारे में। देन ह्यूमन बोन सेट, कंप्लीट बोन सेट, जो 206 हड्डियां होती हैं ह्यूमन की, एक हड्डी गिनाई जाएगी, आपको बोन्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा कि हाँ, ये बोन का फंक्शन ये है, इस बोन के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। देन द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगेन एक अच्छा चैप्टर है। हमारा बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल टिश्यूज है, वो किस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, कैसे हमारे अंदर इंपल्स जनरेट होते हैं। हमने अभी बात की थी कॉन्शियसनेस की और होम्योस्टेसिस की, तो कॉन्शियसनेस कैसे मेंटेन रहता है, सराउंडिंग स्टिमुलस को कैसे ये जनरेट करके आगे पास ऑन करता है। Then the last chapter of class 11 is chemical coordination and integration, which is the discuss about hormones of the human body. हमारे बॉडी में कुछ सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, विच ऑल द हेल्पफुल फॉर अवर बॉडी ग्रोथ। ये सारे चैप्टर्स क्लास 11 में डिस्कस किए जाएंगे। हमारे टीचिंग का जो मोड रहेगा बहुत ही सिंपल रहेगा। हम लोग यहाँ पर क्लास के अंदर जो आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन नोट्स, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्लस साथ हम एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा ही यहाँ पर यूटिलाइज करने वाले। एनसीईआरटी मस्ट है, जब तक एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे हमारी लाइन टू लाइन प्रोसेस नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वी विल ऑल्सो प्लान फॉर डीपीपी एंड वी विल डीपीपी सॉल्यूशन। Soon you will get the update of DPP solution also, and CTC chapter test. After completion of each chapter we will make sure आपको एक नीट का चैप्टर मॉक टेस्ट दिया जाए, जिसके अंदर आपका वीकली या 15 डेज में एक प्रॉपर MCQ टेस्ट, आई एम रिपीटिंग अगेन, MCQ टेस्ट, नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर ईच एंड एवरी सिंगल से सिंपल पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। नॉलेज टेम्पल में आपको हर चीज के अंदर आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा। यू विल गेट द ऑल डिटेल्स ऑफ योर नॉलेज, योर एग्जामिनेशन। अब आप चाहे बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, यू विल गाइडेड बाय द इंडियाज बेस्ट मेंटर्स इन द सब्जेक्ट्स, एंड यू विल that will be help you to get the success in your examination. With these words, today's class is complete. I hope you got the all information about regarding biology, what is biology, what is science. आज हमने साइंस क्या होता है, बायोलॉजी का, तो बहुत बेसिक चीजें हमने शुरू किया था, इससे ज्यादा बेसिक कुछ हो नहीं सकता। मेक श्योर आप इसको गो थ्रू कर लें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, लेट मी नो। ऑल द बेस्ट टिल दैट, बाय बाय, sayonara, thank you from my side. This side Rohit Kumar Purohit, signing off the classes. Thank you.